Namaskar position. Be calm, be comfortable. Omkaram bindu sayuktam nityam dhyayanti yoginaha kamadam mokshadam chaiva omkaraya namo namaha. Omkaraya namo namaha. Omkaraya namo namaha. Friends, we all are going to be a yoga therapist. And how? Under the intelligent guidance of Vijay sir. Thanks him and all of you for giving me an opportunity to be here. So, in our syllabus, there is 3.2, which is Patanjali Yoga Sutra. Its application and understanding of Patanjali Yoga and personality development. So here you can see the image of sage Patanjali. All of us know that the Patanjali Yoga Darshan has 4 chapters, namely Samadhi, Sadhana, Vibhuti and Kaivalya. क्या बात है sir, very nice. Okay, thank you sir. So all of us know that there are 4 chapters, their names, how many verses are in each chapter. That all are the basic things. But today we are looking it as per our syllabus. So the syllabus contains first point, application and understanding of Patanjali Yoga and personality development. So first point is application and understanding. Understanding means to know the exact meaning of the verses, and after getting the meaning, we have to apply in our life. It is very important, and it is also called a darshan. So first we look about the understanding of the Ashtanga Yoga or Patanjali Yoga Darshana. So all of us know that there are 8 limbs of Patanjali Yoga Sutra. मैं बीच में हिंदी में भी बोलूंगा, आप समझ जाएंगे ना सब. तो चलेगा. हाँ, पातंजलि योग शास्त्र के जो 8 अंग है वो आप सभी को मालूम है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and samadhi. Patanjali also gave the definition of each anga or limb. So it starts from yama and niyama. This is basic things I am telling. Yama means there are 5 and they are for the society and the individual. They are ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Then comes niyam. They are also 5. Saucha, santosh, tapa, swadhyay, ishwar pranidhan. Then comes asana. After that pranayama. So all of us know that everything, but what is important? The important thing is to application.
all of us know the meaning. What are yam? What are niyam? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टो अंगानी. In this verse 8 limbs are described. Then yama, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह. नियम शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. All of us know the meaning, but how to apply them in our individual life, it is very important. And Patanjali also gave the solution how to apply in our life. While considering yama, Patanjali told that yama niyama ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha are yama, and they have to apply in our life. उसको आचरण में लाना चाहिए, और आचरण में लाना बहुत इजी है अगर हम जरा सोचे, पतंजलि योग सूत्र का अर्थ प्रॉपरली समझे तो इट इज वेरी इजी. यमा, 5 यमा and their fruits also she told. अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः. So there are 5 yamas and we have to apply in our life. All of us know what is ahimsa, what is satya, what is asteya, what is brahmacharya, and what is aparigraha. So it is our natural tendency to work according to niyamas. अगर कहीं भी हिंसा हो गई तो हमें दुख होता है. इसका मीनिंग क्या है? हमारी नेचुरल टेंडेंसी हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना. सत्य, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, जो है वो ही इंप्लीमेंट करना. सत्य बोलने के लिए कुछ भी प्रयास की जरूरत नहीं रहती. अगर झूठ बोलना है तो सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, क्या झूठ बोले, कैसे बोले, कभी बोले, किसको बोले. इसकी वजह से हमारे मेंटल स्ट्रेन आता है और हम मेंटली सीख होते. इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं आपको कि यम नियम का ऑब्जर्वेंस करना, उसका पालन करना, इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी. उसके अगेंस्ट जो करना है उसके लिए सोचना पड़ता है, लेकिन यम नियम के पालन में हमें वो ऑटोमेटिकली हमसे हो जाता है, उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता. वैसा ही आसन का है. आसन, हम अगर कोई प्राणी देखे तो देखो, सुबह सुबह जो डॉग रहते हैं या और कोई प्राणी रहता है, वो अपना शरीर खींचता है, कहीं और दबाता है, तो उससे वो दिन भर फ्रेश हो जाता है. वैसे ही हम कुछ 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए थोड़ा सा आसन करेंगे तो दिन भर हम फ्रेश रहते हैं. इसलिए ये जो सब अष्टांग है वो इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी. उसमें कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं, लेकिन हम ज्यादा सोचते हैं, इसलिए उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. वैसे तो करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमारी नेचुरल टेंडेंसी को पहचानते नहीं. इसके वास्ते हमें वो यम नियम का पालन करने के लिए कुछ प्रयास महसूस होते हैं. वैसा कुछ भी नहीं है. हम सब अष्टांग योग नेचुरली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा. अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, अभी आसन का सूत्र देखो क्या लिखा है, स्थिर सुखम आसनम. उसके आगे क्या बताया है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम. इसका अगर प्रॉपर मीनिंग हम समझ लेंगे तो
हमसे आसन अपने आप हो जाएगी। आसन में क्या चाहिए? स्थिरता, स्टेबिलिटी। और क्या है दूसरा? प्रयत्न, स्थिरता और सुखकारकता, प्लीजेंटनेस चाहिए। कौन सा भी आसन करो, आजकल क्या होता है, डिफिकल्ट आसन किया तो उसको बहुत वाह वाह मिलती है, वो अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अगर उसमें स्थिरता नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्लीजेंटनेस नहीं होगा, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। उल्टे उसके बजाय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आसन कौन सा भी हो, उसमें स्थिरता और स्टेबिलिटी ये मेन चीज रहना चाहिए। अगर हम ऐसे आसन का एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे सब शारीरिक प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। मेरा खुद का बहुत साल का एक अनुभव है। इसलिए मीनिंग प्रॉपर मालूम होना चाहिए। आसन यानी क्या? स्थिरता और सुखकारकता। इसके बीच में आप जो जो आसन करेंगे उसके फायदे अपने अवश्य अपने आप ही मिल जाएंगे, उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वैसा ही प्राणायाम का है, हमें मालूम है सबको। प्राणायाम का डेफिनेशन क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति यानी क्या? आसन में दृढ़ होने के बाद, आसन का अभ्यास अच्छी तरह करने के बाद ही प्राणायाम करना है। आजकल क्या होता है, सब लोग पहले हमें प्राणायाम सिखाओ क्योंकि प्राणायाम के फायदे ज्यादा है। लेकिन अगर आप आसन से दृढ़ नहीं होगे और डायरेक्टली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए पातंजल योग सूत्र प्रॉपर समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही उसका अनुपालन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। बट when we properly understand the meaning of that verse, so वैसा ही हर एक लिम का है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, all are very easy, but when we know the proper meaning of that limb, of that anga, so application is more valuable, more important than understanding. So application किए बिना पतंजलि ने जो फायदे बताए वो हम नहीं पा सकते। आसन का क्या बताया है? ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी सब प्रकार के द्वंद्व दूर हो जाते हैं, उसका अनुभव आता है हमें। इसलिए पहला स्थिर सुखम आसनम और उसके बाद प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया तो आगे का अपने आप हो जाता है, रिजल्ट अपने आप ही मिलता है। वैसा ही हर एक अंक है। अभी ये जो शुरुआत है वो अभी तक के लिए इतना काफी है स्टार्टिंग। अगर मैं सब लिम का बताऊंगा तो ज्यादा अपना टाइम जाएगा और हमें 3 से 4 दिन में ये सब टॉपिक पूरा करना है। क्या टॉपिक है? पातंजल योग सूत्र। अभी है मैं अब हमें एप्लीकेशन कैसा करना है ये शॉर्ट में बताए। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? तैत्तरीय उपनिषद में बताए 5 फोल्ड है। क्या है वो 5 फोल्ड? आप सबको मालूम है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो कोश है, शीत है, वो डेवलप होने के बाद अपने आप पर्सनालिटी डेवलप होती है। अभी वो प्राणमय अन्नमय जो कोश है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या यूज होता है? पतंजलि का योगासन। प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम उपयुक्त है। मनोमय कोश के लिए प्रत्याहार उपयुक्त है और विज्ञानमय आनंदमय कोश के लिए धारणा, ध्यान, समाधि हम यूज कर सकते हैं। अभी एज पर तैत्तरीय उपनिषद ये 5 फोल्ड पर्सनैलिटी है, लेकिन सांख्य गीता में बताया है कि 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है।
कौन सी होती है? सात्विक, राजस और तामस। गीता में बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सात्विकः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। ये जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे पातंजलि योग सूत्र का अनुपालन करने से डेवलप होती है। सात्विक यानी क्या? सात्विक यानी उसका गुण क्या रहता है? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कामनेस एंड पीस। राजस का क्या होता है? रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, एंगर। और तामस का क्या होता है? लेजीनेस, लिथार्जी एंड इग्नोरेंस। सो ये जो गुण है, सात्विक गुण, यो योगा से, पातंजलि योग दर्शन में जो बताया है अष्टांग, उससे डेवलप होते हैं। हम एक सोसाइटी का अंग है, सोसाइटी में हमें रहना पड़ता है, इसलिए जो सोसाइटी है उसका और हमारा इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए, सहयोग अच्छा होना चाहिए। हम समाज के घटक है, समाज के अंग है। समाज को कुछ दुख ना पहुंचे, उसका नुकसान ना हो, इसलिए सब यम बताए। और खुद के प्रोग्रेस के लिए नियम बताए हैं। इसका अगर हम अनुपालन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या बताया पतंजलि ने? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब सोसाइटी के वास्ते है और अपने भी वास्ते है। और नियम जो बताए, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिता, ये पर्सन के लिए है, खुद के लिए है। ये दोनों से हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तरह से बढ़ सकती है, डेवलप हो सकती है। आसन के द्वारा हम सब प्रकार के डिसीज दूर रख सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रखते हैं और उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है, चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। प्राणायाम की वजह से हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं और वो कंट्रोल के बाद हम समाज में कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, सबको पता है, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहने के बाद हम बुरा काम पर्पजली करते हैं और समाज को भी दुख देते हैं और खुद को भी दुख लेते हैं। इसलिए ये जो अष्टांग है, अष्टांग का अनुपालन करने से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट डेफिनेट हो जाता है। अभी हम एक एक पॉइंट लेंगे, बाद में किसी का कोई ये रहेगा शंका निरसन को हम करेंगे। अभी ये जो हो गया, अभी फर्स्ट पॉइंट, पातंजलि योग सूत्र, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसी के बारे में किसी को पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हो। सबको समझ में आया? समझ में आ गया क्या Yes, सर? sir. Yes, sir. Yes, yes. बहुत आसानी से। वेरी स्लाइड नाइसली टेकिंग हो रहा है सर, सर, बहुत अच्छे ले रहे हो। थैंक यू। बहुत अच्छा है। पर स्लाइड आगे का स्लाइड भी देखना है सर। हाँ, दिखाता हूँ आगे का हाँ। स्लाइड दिखाता हूँ। अभी पतंजलि का फर्स्ट जो है वर्ष, वो है अथ योगानुशासनम। इसका मैंने संधि विग्रह किया। संस्कृत भाषा में एक एक शब्द बहुत बड़ा रहता है, उसका अगर विग्रह किया, उसको डिवाइड किया, तो उसका अर्थ हमें प्रॉपरली समझ में आ सकता है। अभी ये अथ योगानुशासन का विग्रह क्या है? अथ प्लस योगा प्लस अनुशासन। अथ मीन्स नाउ, योगा मीन्स साइंस ऑफ योगा एंड अनुशासन मीन हाउ टू फॉलो। इट इज वेरी सिंपल। उसका मीनिंग क्या है? नाउ इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स हाउ वन कैन फॉलो योगा इन द डेली रूटीन। पतंजलि ने खाली ओनली फिलॉसफी नहीं बताई, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है वो भी बताया है। इसलिए फर्स्ट वर्स क्या है? अथ योगानुशासनम। नाउ इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स हाउ वन कैन फॉलो योगा इन द डेली रूटीन।
अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। As per our syllabus, there is another point, the nature of seer in pure state. समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेचर हमें मालूम है, नेचर यानी स्वभाव, गुणधर्म, लेकिन सियर क्या? सियर यानी अपनी खुद की आत्मा जो देखती है। इसके लिए सूत्र क्या बताया पतंजलि ने? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा, तदा means at that time. At what time? When we conquer our वृत्तिज। वृत्ति निरोध, वृत्ति निरोध करने के बाद द्रष्टुः, द्रष्टुः means oneself, one soul। स्वरूपे, स्वरूपे means in original form, and अवस्थान means remain steady। संस्कृत वर्ड है, इसलिए इसका हर एक का मीनिंग देना जरूरी है। So what the verse says, through yogic observance means 8 limbs, after the control over mind, means after the observation, application of the 8 limbs, we definitely control our mind. The practitioner remains constantly in or her original pure form. We all have original pure form, but जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे ऊपर संस्कार होते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं। हम झूठ बोलने लगते हैं और कुछ करने लगते हैं, इसीलिए हमें दुख प्राप्त होता है। हमारा ओरिजिनल जो स्टेटस है वो स्वरूपे अवस्थानम। स्वरूपे मीन्स ओरिजिनल फॉर्म। वो क्या है? अपने सबका ओरिजिनल फॉर्म आनंदमय है, जॉयफुल है। जो एक्सट्रीम सुपर पावर जो है, वो सुपर पावर भी हमें है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, अपने ऊपर संस्कार हो जाते हैं अलग अलग तरह से, वैसे वैसे हम भूल जाते हैं। स्वरूपे, आवर स्वरूप इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी जॉयफुल। अगर हम छोटे बच्चे की ओर देखते हैं, उसके ओर देखने के बाद ही हमें आनंद होता है, अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है। अगर वो गधे का भी बच्चा हो, छोटा हो, फिर भी हमें अच्छा लगता है। इसका मीनिंग क्या है? अपना जो स्वरूप है वो आनंदमय है, सुखमय है, जॉयफुल है। इसलिए नेचर ऑफ सियर इन प्योर स्टेट, व्हेन कब आता है वो? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था। तदा यानी व्हेन वी अप्लाई अष्टांग योग इन आवर लाइफ, सो हम अपने स्वरूप में जाते हैं, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, हम हमेशा जॉयफुल रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते, कोई और हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। बट व्हेन, तदा मीन्स एट दैट टाइम, व्हेन वी अप्लाई अष्टांग योग इन आवर लाइफ। इज इट क्लियर? व्हाट इज पिक्चर गिवन हियर? You see a palm. It is a symbol of तथास्तु। अगर हम भगवान के पास कुछ मांगते हैं और जो आशीर्वाद मिलता है वो तथास्तु ऐसा रहता है। उसका दूसरा मीनिंग भी है, अपना पूरा शरीर जो पंच महाभूत से बना है। कौन से पंच महाभूत? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वो सब बैलेंस है। वो बैलेंस रहने के बाद ही हम सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ स्वरूप, हमारी आनंदमय स्थिति, हमारी अच्छी स्थिति, हमारी सुखमय स्थिति। सो नेचर ऑफ सियर इन प्योर स्टेट क्या होता है? आनंदमय होता है, सुखमय होता है, फुल्ली ब्लेस्ड होता है। इसलिए ये सिंबल ये यहाँ बताया है। कोई डाउट? हर एक इसके बाद हम पूछेंगे। सरस्वती जी समझा आपको?
Okay. Sir, So superb. we'll go to next verse. Superb, sir. Now here comes the concept of vrittis, vrittis nature and classification and definition. It is somewhat big topic. We all know that there are 5 vrittis: praman, viparyaya, vikalpa, nidra, and smriti. And what is the nature of the vrittis? It's klishta and aklishta. What is klishta? Klishta means troublesome. And what is aklishta? That are trouble free. So here 2 pictures are given. One is a bundle which is very complicated, klishta, and another one is aklishta, very simple. What is the meaning of this? When we follow the Patanjala yoga, not only understanding, but when we follow, our vrittis, mental tendencies are in our control. And when we don't follow them, when we vrittis are not in our control, our life becomes klishta. There are many problems which are to be very complicated to solve them. But when we follow the Patanjali Yoga Sutra, our vrittis are in our control and our life is very easy, simple, and joyful. So the nature of vrittis, when we control our vrittis, our life is troubleless, trouble free. When we can't control the vrittis, our life becomes troublesome. This is the meaning of this. Then next, vrittis nature, classification and definition. At the classification, you know that praman, viparyaya, vikalpa, nidra, smriti. There are 3 varieties of praman: pratyaksha, anuman, agam. So all of these vrittis are there in each life. They are changing as per the circumstances. So the mental tendencies are of 5 types, which sometimes are troublesome and trouble free at some time. When they are troublesome, when we don't control our vrittis, and when they are trouble free, when we control our vrittis. All of you know that praman, viparya, vikalpa, nidra, smriteya. I don't want to repeat the meaning of them. If anybody don't know, then I will simplify it. Is it necessary? हे थोडस 2 ओळी सांगा ना, चालेल. Okay, no problem. So, what is pramana vritti? Pramana means एक जो आंख के सामने दिखता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष, प्रति यानी in front of, अक्ष means eyes, प्रत्यक्ष, अनुमान, agam. When the things are happening in front of us, we saw it, we see it, then our mind becomes some tendency. आंखों के सामने जो दिखता है वो हमें सच लगता है, ट्रू लगता है, लेकिन कभी कभी वो भी गलत साबित हो सकता है. हम दूर से एक फ्रूट देखते हैं, सेब देखते हैं, वो दूर से देखने के बाद हमें लगता है वाह वाह कितना अच्छा है, हम खा सकते हैं इसको, लेकिन नजदीक जाने के बाद वो हमें दिखाई पड़ता है इट इज मेड ऑफ वुड, वी कांट ईट इट. सो जो आंखों के सामने है वो भी कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन अगर हमारा अपने अगर
जो हमारे सामने है वो भी गलत हो सकता है, इसलिए हमें अपने वृत्तियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद में अनुमान, अनुमान यानी तर्क, जो हमारे आगे दिखता है उसके पहले कुछ था, उसके बाद में कुछ रहेगा, ये जो अपना तर्क है वो अनुमान कहलाता है। वो कभी कभी गलत हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है। और आगम, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो गुड विषय है, उन्होंने जो कुछ बताया हमें, हम उस पर विश्वास रखते हैं और उसकी तरह फॉलो करते हैं। लेकिन वो भी कभी कभी एज पर सर्कमस्टेंसेस गलत भी हो सकता है। इसके लिए हमारे वृत्तियों पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार है। बाद में विपर्यय, विपर्यय यानी क्या? गलत नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। विपर्यय के बाद प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। हमें लास्ट टाइम डॉक्टर संजय लेने ने प्रश्न पूछा था क्या निद्रा वृत्ति के बारे में, आपको याद है? निद्रा वृत्ति यानी क्या? जो हमारे पास नहीं है, जिसका एब्सेंस है हमारे पास, उसके ऊपर ही सोचना, और उससे अगर हमारे वृत्ति में कंट्रोल होगा तो हमें दुख नहीं होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दुख होगा। लास्ट टाइम एक पानी का ग्लास का उदाहरण दिया आपने। एक ग्लास में पानी है लेकिन हाफ है। कोई लोग क्या सोचते हैं, ये फुल ग्लास चाहिए था मुझे, ये हाफ ही है, क्या फायदा मुझे। इसका अर्थ क्या है? हमारे वृत्ति पे हमारा कंट्रोल नहीं। जिसका वृत्ति पे कंट्रोल है वो बताएगा ठीक है हाफ है, मुझे थोड़ी प्यास लगी, ये मैं पीऊंगा, उसके बाद में और लगेगा तो और मैं मंगवा लूंगा। लेकिन कोई कोई की सोच ऐसे है, मुझे अभी के अभी पूरा का पूरा ग्लास चाहिए, इसलिए उसे दुख निर्माण होता है। क्यों दुख निर्माण होता है? जो वृत्ति है, टेंडेंसी है कि मुझे पूरा चाहिए, टेंडेंसी पे कंट्रोल नहीं है। अगर टेंडेंसी पे कंट्रोल होगा तो बोल ठीक है अभी समय ऐसा है, मुझे हाफ ही मिल रहा है, ठीक है वो चलेगा, उसके बाद में मैं देखूं, तो दुख नहीं होगा। ऐसा जो वृत्ति है उसके ऊपर कंट्रोल रखने के बाद हमें बिल्कुल दुख नहीं होता, हमारा लाइफ सिंपल बन जाता है, हमारा लाइफ ट्रबल फ्री हो जाता है। ऐसा ये 5 वृत्ति के बारे में क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताया है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है मेथड्स टू कंट्रोल चित्त वृत्ति। अभी हमने देखा वो पानी का आधे ग्लास का उदाहरण, वो जो टेंडेंसीज है, मेंटल टेंडेंसीज है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए वो भी पतंजलि ने बताया है। मेथड टू कंट्रोल चित्त वृत्ति क्या बताया है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी क्या? अभ्यास और वैराग्य, वैराग्याभ्याम ये जो अपना व्याकरण है उसके वजह से भ्याम आया है, 2 चीजें है इसलिए। लेकिन मोस्ट जो चीजें कौन सी है? अभ्यास व वैराग्य। अभ्यास यानी क्या? कंटिन्यूअस स्टडी, और वैराग्य यानी क्या? डिटैचमेंट। तत्, देयर, देयर मीन्स दैट वृत्तिज, निरोधा मीन्स कंट्रोल। सो ये जो वृत्ति है उनका कंट्रोल कैसा करने का? विद अभ्यास, कंटिन्यूअस स्टडी एंड वैराग्य, डिटैचमेंट। गीता में भी ये बताया है, जब युद्ध भूमि पे अर्जुन अपने सामने सब अपने रिश्तेदार देखता है और कृष्ण को बोलता है ये मुझसे नहीं होगा युद्ध, अब तुम ही देख लो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनको गीता पढ़ाते हैं, गीता बताते हैं। अर्जुन सब कुछ सुन लेता है, बाद में प्रश्न पूछता है आपने ये जो सब बताया वो सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे मन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, मेरे मन के वृत्तियों पर कंट्रोल चाहिए, तभी मैं ये कर सकूंगा। अगर मेरे वृत्तियों पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा तो मैं कैसा ये युद्ध कर सकूंगा?
तो श्लोक ऐसा है, अर्जुन पूछता है उन्हें, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। यानी मेरा मन बहुत चंचल है, हर एक का मन चंचल होता है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जो चंचल मन है वो मुझे स्थिर करना नहीं आता, वो स्थिर कैसा करते हैं मुझे बताओ, बाद में मैं युद्ध करूंगा। अभी अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा वो बहुत सही था। अगर मन के ऊपर कंट्रोल नहीं तो तू कोई भी काम नहीं कर सके। अगर मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है तो कोई भी काम, डिफिकल्ट काम भी अच्छे तरह से कर सकेगी। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी पतंजलि के जो योग दर्शन है उसके पहले 2500 साल जो भगवत गीता बताई गई है उसमें भी अभ्यास और वैराग्य बताए है। इसलिए अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल आवर चित्तवृत्तिज, दो ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मीन्स कंटिन्यूअस स्टडी और वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। अब यहाँ वी फिगर बताइए, इसका मतलब क्या है? वी यानी विक्ट्री। एक जो उंगली है वो अभ्यास की है और दूसरी जो है वो वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चित्त वृत्तियां अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और हमारा लाइफ ट्रबल फ्री कर सकते हैं। अगर नहीं समझे तो मैं वापस बताऊंगा। वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर विजय। सर आपके साथ में विजय है, आपकी ओके विक्ट्री ओके। जरूर। सर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं सर, प्लीज।